आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स. So we have an idea of what is displacement, what is velocity, and what is acceleration. Let me just call it A, and acceleration. So what you need to know is that when you derive displacement, you get the velocity. So dx by dt gives you the velocity. So velocity is dx by dt. Then if you derive the velocity, you get the acceleration. So acceleration is equals to dv over dt. Now, what if you have to find the velocity from acceleration? That is, what if you have to go from here to here? Then you integrate acceleration and you get the velocity. So velocity is integration of acceleration. And then to find displacement, you have to integrate the speed. So displacement is integration of speed. Now, if you directly have to find acceleration from displacement, then you have to derive twice to get to acceleration. And let's say you have to find displacement directly from A, then first you integrate, you get V, and then you integrate again, and you get X. Okay. Now, in the questions that we'll do from the worksheet and the book, there's going to be an observation point of motion. There's a particle that starts to move at time is equals to 0. It's at a position which is referred to as O. Ye particle, it's not O. This is a particle. Okay. And that is called observation point. So it's represented by O. This is the observation point. And this is at t is equals to 0. Okay, अच्छा वैसे जरूरी नहीं है. This is always at t is equals to 0. Sometimes it's not. For example, if x is equals to t square minus 3t minus 2, then what is the displacement at t is equals to 0? So what is x? At t is equals to 0. So when t is 0, x is minus 2 meters or whatever the unit is. अब क्या मतलब कि displacement minus 2 है? Can anybody tell me what they think this means?
It's going 2 units in the opposite direction. Yeah. From the observation point, this is the observation point, O. That means that at t is equals to 0, the object is, let's say, towards the left of the observation point. यहाँ पे है particle at t is equals to 0. ठीक है, so observation point का concept बहुत important है. Negative is the direction. So it's in a certain direction to the observation point. What if the equation of the displacement is this? X is equals to t square minus 3t plus 2. Now, what is the displacement when t is equals to 0? It's 2. This time it's positive 2. That means this particle is 2 units to the right of the observation point. इधर से start हुआ, या ऊपर बना लेते. This is 2 meters, and this is where the object is at the start, at time is equals to 0. This is called initial displacement. The value of x at t is equals to 0 is called initial displacement. Let's write that down. Value of x at t is equals to 0. Okay. Now, if we are given an expression for the velocity, which is t square minus 3t minus 2, then what is the initial velocity? Initial velocity again means at time is equals to 0. So time is equals to 0 gives us v is equals to minus 2 meters per second. So that is the initial velocity. Ab now what does this negative mean? That means ये let's say left की तरफ जा रहा है. यहाँ आपका observation point है और at t is equals to 0 observation point नहीं बनाते फिलहाल. When t is 0, v is negative 2, that means इस direction में जा रहा है because v is negative 2. अगर positive 2 होता तो opposite direction में दिखा देते. अच्छा, अब whenever during a movement of the particle, when v becomes 0, during the motion of a particle, if speed becomes 0, that means particle changes direction.
इसका मतलब है कि आप अगर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको पता चले कि लेट्स से ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ टाइम 3 है, टाइम इज इक्वल्स टू 3 पे स्पीड हो गई पार्टिकल की 0। इसका मतलब है पहले वो यहाँ से यहाँ है पार्टिकल, और अब v इज इक्वल्स टू 0 हो गया है, तो वो ऑपोजिट, उसके बाद वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, 0 के बाद जब दोबारा चलेगा तो इट विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इंस्टेंटेनियसली 0 होगी वेलोसिटी। उसके बाद दोबारा इट विल स्टार्ट टू इंक्रीज, बट नाउ इट इज गोइंग टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पहले अगर स्पीड पॉजिटिव थी, वेलोसिटी सॉरी, तो अब नेगेटिव हो जाएगी। सो जब भी ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस हमारी स्पीड वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसका मतलब है अब इस टाइम के बाद ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं बुक का। A particle moves in a straight line and its displacement x meters from a fixed point fixed point O t seconds after passing from O is given by x equals 12t minus t cube. Part A is find the acceleration of the particle when it is at instantaneous rest. When it is at okay. Part B is find the velocity of the particle when it is next at O. C is the distance traveled by the particle during first 3 seconds.
Okay, this is the question. A particle moves in a straight line and its displacement x meters from a fixed point O t seconds after passing through O is given by x is equals to 12t minus t cube. अब ये इक्वेशन आपको हर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बता रही है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो ओरिजिनल पॉइंट है ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ उससे डिस्टेंस, क्या +3 है किसी एक टाइम पे, तो वो डिस्प्लेसमेंट इन ऑब्जर्वेशन पॉइंट के राइट पे होगा फॉर एग्जांपल। और अगर किसी और टाइम पे -6 आ रही है डिस्प्लेसमेंट, तो उसका मतलब है वो उस टाइम पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट के कहीं लेफ्ट साइड पे होगा। Find the acceleration of the particle when it is at instantaneous rest. Okay. Instantaneous rest का मतलब है कि उस वक्त स्पीड 0 होगी। हमने उस टाइम की एक्सेलरेशन निकालनी है जब स्पीड 0 होगी, जब पार्टिकल इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे होगा। तो अब हमें x गिवन है, x से हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो हमें पता है कि पहले x से वेलोसिटी निकलती है। सो फॉर पार्ट ए पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे फ्रॉम x, और वो आती है dx/dt से, और वो आ गई 12 माइनस 3t²। अब इंस्टेंटेनियस रेस्ट का होगा, जिसका मतलब है स्पीड 0 है। अब किस टाइम पे स्पीड 0 है वो निकालनी है। तो ये हमारा आ गया 3t² इज इक्वल्स टू 12, t² इज इक्वल्स टू 4, t इज इक्वल्स टू, वैसे तो +-2 होता है लेकिन -2 सेकेंड्स कुछ नहीं होता, सो 2 सेकेंड्स। विच मीन्स कि जब ये पार्टिकल 2 सेकेंड्स चल पड़ा है तो उस वक्त उसकी स्पीड 0 हो गई है, और अब ये डायरेक्शन चेंज करेगा। स्पीड 0 क्यों होती है इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे पार्टिकल आता है? क्योंकि उसने अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट करनी होती। अच्छा, हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए इस इंस्टेंट पे। तो अब हम ए का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और उसमें टाइम की जगह 2 सेकेंड्स डाल देंगे। ओके, सो एक्सेलरेशन आता है dv/dt से, और ये रहा v। अब इसको फर्दर करते हैं इंटीग्रेट, सो एक्सेल सॉरी डेरिवेट, so it will be acceleration is equals to -60। और एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स था जब स्पीड 0 हुई थी, तो इस पे एक्सेलरेशन वुड बी -12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज नेक्स्ट एट ओ। ओ क्या था? ऑब्जर्वेशन पॉइंट। और ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे x 0 होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, O is the observation point, जहां पे x डिस्प्लेसमेंट 0 होती है ऑब्जेक्ट की। ओके, तो अब आपने देखना है कि जब पार्टिकल दोबारा से
इस पॉइंट ओ से गुजरेगा, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो पहले तो हम x इज इक्वल्स टू 0 की इक्वेशन बनाएंगे, तो 0 इज इक्वल्स टू 12t माइनस टी क्यू। पहले तो है x इज इक्वल्स टू 12t माइनस टी क्यू। अब आ गया 0 इज इक्वल्स टू 12t माइनस टी क्यू। इसको करते हैं फैक्टराइज, t कॉमन, सो ये आ गया t इज इक्वल्स टू 0 एंड 12 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। इससे आ गया t इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 12। प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। सो इस रिजल्ट से पता चल रहा है कि दो टाइम्स हैं जिसपे पार्टिकल जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसके ऊपर से गुजरता है। एक तो है टाइम इज इक्वल्स टू 0। जब टाइम 0 है तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर है। और जब t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 12 है, तब भी पार्टिकल दोबारा से ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर से गुजरेगा। इसका मतलब है कि पहले टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल इधर था, फिर लेट्स से इधर कहीं गया है, और फिर कहीं उसकी स्पीड 0 हो गई है, तो फिर वापस आया और दोबारा से इधर से गुजरा। तो वो क्या टाइम है जब पार्टिकल दोबारा से ऑब्जर्वेशन पॉइंट से गुजरेगा? वो है स्क्वायर रूट ऑफ 12। सो एट टाइम equals square root of 12, object again passes through the point O, which is the observation point. अच्छा, इन्होंने हमसे टाइम पूछा था या कुछ और पूछा था? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज नेक्स्ट एट O। अब हम इस t की वैल्यू को वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर लें। तो वेलोसिटी है 12 माइनस 3t स्क्वायर। यहां से अब इसकी जगह अंडर रूट 12 डाल दें। 12 माइनस 3 अंडर रूट 12 स्क्वायर, ये आता है -24। सो जब पार्टिकल दोबारा से ओ से गुजरा है, तो उस वक्त उसकी स्पीड -24 मीटर्स पर सेकेंड है। सॉरी, वेलोसिटी नेगेटिव बताता है कि उसकी डायरेक्शन अब ऑपोजिट है। अच्छा, अब इसका लास्ट पार्ट क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 3 सेकेंड्स। अच्छा, डिस्टेंस पूछा है 3 सेकेंड्स में। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे हमें पता है कि जो स्पीड है वो थी 0, सॉरी टाइम 0 था। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड 0 हो जाती है एट t इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से हमें पता है कि अब ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू हुआ है किसी एक डायरेक्शन में, हम कह देते हैं राइट डायरेक्शन में। इधर चलना शुरू हुआ ऑब्जेक्ट। कब तक चलेगा वो इस डायरेक्शन में? जब तक स्पीड इंस्टेंटेनियसली 0 नहीं होगी, क्योंकि जब इंस्टेंटेनियसली 0 हो जाएगी तो वो उल्टी डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। तो अब स्पीड कब होती है 0? यहां से हमें पता है टाइम इज इक्वल्स टू 2 पे होती है स्पीड 0। हमने पार्ट ए में निकाला था। सो टाइम इज इक्वल्स टू 2 पे स्पीड हो गई 0, और ऑब्जेक्ट अब अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, ऑपोजिट चलना शुरू कर देगा इस डायरेक्शन में। पहले हम देखते हैं
कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ। टाइम इज इक्वल्स टू 0 से टाइम इज इक्वल्स टू 2 तक। अच्छा, तो हमारे पास x का एक्सप्रेशन है, x है 12t - t³ तो इनिशियली जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, और जब टाइम 2 है तो डिस्प्लेसमेंट होगी 12 × 2 - 12³ सॉरी 12 × 2 - 2³। इससे आंसर आता है 16। ठीक है, तो इतनी देर में टाइम 0 से लेकर टाइम 2 तक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने इनिशियल ऑब्जर्वेशन पॉइंट से शुरू हुआ और यहाँ तक आ गया, और ये डिस्टेंस हमने देखा है 16 मीटर्स। यहाँ है टाइम इज इक्वल्स टू 2। पहले पार्टिकल यहाँ था और अब इधर आ चुका। फिर हमें अपनी वर्किंग से पता है कि इधर स्पीड हो गई 0, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई 0, और अब ये ऑब्जेक्ट उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। सो यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी इज 0 और डायरेक्शन चेंजेस। अब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। तो अब वो कितना चलेगा, अब हम देख लेते हैं कि टाइम इज इक्वल्स टू 3 पे ऑब्जेक्ट किधर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं एट कितने टाइम तक चाहिए था, 3 टाइम। टाइम इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो एट टाइम इज इक्वल्स टू 3 हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, रिमेम्बर डिस्टेंस नहीं निकाल रहे, क्योंकि जो x होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट होती है। तो टाइम इज इक्वल्स टू 3 पे ऑब्जेक्ट किधर है, वो हो गया फॉर्मूला, x के फॉर्मूला में डालेंगे 12t - t³ में, तो ये हो गया 12 × 3 - 3³ which is 9। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब टाइम 3 है तो इस ये ऑब्जेक्ट O से 9 मीटर्स के डिस्टेंस पे पड़ा। ये O है, ठीक है। पहले हमने टाइम इज इक्वल्स टू 2 पे निकाला था, टाइम इज इक्वल्स टू 2। तो ये जो डिस्टेंस आया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आया था 16 मीटर्स। अब टाइम इज इक्वल्स टू 3 पे ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है 9, यहाँ पे कहीं है, क्योंकि वो वापस आना शुरू हो गया ना तो उसने इधर डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो अब वो वापस उसकी डिस्प्लेसमेंट कम हो गई है। सो टाइम इज इक्वल्स टू 3 पे हमारे पास आया है डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 9 मीटर्स। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने टोटल 3 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पहले तो वो गया यहाँ से यहाँ, और फिर वो गया यहाँ से यहाँ। तो पहले उसने 16 मीटर्स कवर किया, और फिर वापस कितना कवर किया, यहाँ पे O था, यहाँ पे टाइम इज इक्वल्स टू 2 था, जिसपे हमारी डिस्प्लेसमेंट आई थी
16। तो उसने सबसे पहले तो वो 16 मीटर्स कवर कर लिया। उसके बाद स्पीड 0 हो गई और ऑब्जेक्ट ना उल्टा चलना शुरू हो गया यहाँ से। ये लेट्स से 2 था टाइम। अब ऑब्जेक्ट उल्टा चलना शुरू हो गया और आपसे पूछा है टाइम इज इक्वल्स टू 3 पे कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। तो टाइम इज इक्वल्स टू 3 पे आपके पास ये 9 आया। ठीक है, 9 जो है ना वो शुरू से 9 है, यहाँ से ये 9 आया। 9 जो ओ होता है, सॉरी जो एक्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ होता है। तो आपका ओ से लेकर 9 मीटर्स आया। तो इसका मतलब है उसने यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर्स चला है पार्टिकल। पहले यहाँ पे 16 था, अब 9 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक वो उसने 7 मीटर्स मूव किया। 16 - 9 7। सो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है, पहले 16 मीटर्स कवर हुआ है और फिर जब वो वापस चलना शुरू हुआ है तो 7 मीटर्स चला। 23 मीटर्स आ गया आंसर। सो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है 23 मीटर्स। पहले एक डायरेक्शन में 16 मीटर्स और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में 7 मीटर्स। सो दैट्स अ टोटल ऑफ 23 मीटर्स। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, which is, अच्छा नहीं, भी इसका एक और पार्ट भी है, वो कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, अच्छा नहीं, ये दैट इज द डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ द सेम क्वेश्चन। ओके चलो, लेट्स डू दिस क्वेश्चन टुमारो। बस मैकेनिक्स के लिए आज यही था। और अब आई एम गोइंग टू सेंड यू गाइस अ न्यू लिंक फॉर द प्योर क्वेश्चन। और अगर नहीं है पेपर में कोई प्रॉब्लम तो मुझे बता देना।